Hello students, today we study the topic our environment in geography first chapter. I have already sent the question answer of this chapter, so student listen the video carefully. Firstly, student we discuss our environment meaning. In simple terms, we can say that everything that is our in surrounding is called our environment. These surrounding things is called our environment. Thus environment is our basic life support system. This is because it provides the air we breathe, the water we drink, the land where we live, and the food we eat. So environment is very essential part of our life. So student, these surrounding can be divided into two categories. Two categories, natural and man-made. These are also known as the components of environment. The surrounding means natural and man-made is also known as the components of our environment. So we discuss the components of our environment. Components of environment. Our environment consists of two main components, natural and man-made. In natural environment, we include living organisms, biosphere, land, lithosphere, air, air, atmosphere, water, hydrosphere. Natural environment include living organisms, biosphere, land, lithosphere, air, atmosphere, and water, hydrosphere. In this video, we only discuss the natural environment. Next video, we discuss man-made environment. So first, we clear the definition of natural environment. All these things that are naturally existing around us are together called natural environment. Means anything that we are obtained from nature is called natural environment. These things are the free gift of nature. For example, plant, animal, land, air, water, etc. Natural environment is further divided into two parts, biotic and abiotic environment. Biotic environment include all living things and abiotic environment include all non-living things. So student, I think you clear about natural environment. Then we discuss the major domains of the earth. The major domains of the first we discuss major domains of the earth. There are four major domains of the earth. First we discussed about lithosphere. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. जो हमारी लिथोस्फेयर है वो हमारी बिल्कुल हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर हैज मैनी अप्स एंड डाउन्स. इट मीन्स इट इज फाउंड unevenly because we can see that somewhere mountain, somewhere plateau, hills, valley, etc. So we can say that lithosphere has many ups and down. These landscapes are found over the continents and oceans floor. The lithosphere is made up of various rocks and minerals. जो lithosphere है हमारे वो अलग अलग तरह की रॉक्स और मिनरल से भी हमारे मतलब बनते हैं, मेड अप ऑफ होते हैं. द लिथोस्फेयर इज कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. लिथोस्फेयर इज कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ सॉइल और द सॉइल हेल्प टू ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड स्क्रब्स which provide food not only to human beings but also animals. So, lithosphere is a very essential part of our life. The lithosphere is also known as the home of different plants and animal because they provide settlements as well as human beings and animals. It is a source of various mineral resources such as coal, aluminium, manganese, lead, zinc, oil, etc. So student, I think you clear about lithosphere. Okay, then our next domains of the earth is atmosphere.
The atmosphere, the thin layer of air that surround the earth is known as the atmosphere. It reach up to a height of 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. इसकी जो हाइट होती है वो अर्थ सरफेस से यानी अर्थ से ऊपर कितनी होती है 1600 किलोमीटर. द एटमोसफियर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय इट ग्रेविटेशनल फोर्स. जो हमारा एटमोसफियर है वो अर्थ के साथ कांटेक्ट है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैस such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, neon, ozone, etc. as well as the dust and water vapors. यानी जो एटमोसफियर है उसके अंदर गैसेस के अलावा जो डस्ट और वाटर वेपर्स भी अवेलेबल होते हैं. और जो सबसे ज्यादा जो गैसेस एटमोसफियर के अंदर अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट गैसेस फॉर ह्यूमन बींग्स. द एटमोसफियर एक्ट एज ए thick blanket which protect us from harmful ultraviolet rays of the sun. जो एटमोसफियर है वो हमें हार्मफुल जो रेज हैं सन की उनसे भी प्रोटेक्ट करता है जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं. द चेंज इन द एटमोसफियर ब्रिंग चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट. एयर प्रोवाइड अस ऑल द वेदर रिलेटेड फिनोमिना सच एज विंड, रेन, एक्सेट्रा. The atmosphere act as a big air conditioners moderating the extreme of heat and cold. It also contains life-giving gases like oxygen and carbon dioxide. Our topic atmosphere. Clear? Then we read about hydrosphere, the third major domain of the earth. The domains of water is referred to as hydrosphere. जो हमारा वाटर है वो हमें किसको रिफर करता है? हाइड्रोस्फीयर को. ओशियंस, सी, लेक एंड रिवर कलेक्टिवली फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर. ये हमारे मतलब फॉर्म है हाइड्रोस्फीयर के. ओशियंस, सी, लेक एंड रिवर. लेकिन जो हमारा मेन कंटेंट्स है वो हमारा क्या है? ओशियंस है, जहां से हमें मतलब पानी सबसे ज्यादा मिलता है, वाटर हमें अवेलेबल होता है. इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड animal. Essential means very important. It is very important for human beings, plants and animal. Without water life is not possible. We not suppose life. हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम पानी नहीं होगा हमारे पास तो हम अपनी लाइफ को मतलब पॉसिबल नहीं कर पाएंगे कि भाई विदाउट लाइफ हमारी जो विदाउट पानी हमारी जो लाइफ है वो कैसी बिल्कुल नील है. About 71% of earth surface is covered with water. और हमारा जो 71% ऑफ वाटर है वो हमारे अर्थ सरफेस पे कवर्ड है. इट प्रोवाइड अस ग्रेट वेराइटी ऑफ सी फूड्स. जो हाइड्रोस्फीयर है वो हमें ग्रेट वेराइटी ऑफ सी फूड्स प्रोवाइड करता है. मतलब अलग अलग वेराइटीज हमें खाने की जो हमें फूड जो समुद्र से जो फूड मिलता है वो हमें प्रोवाइड करवाता है. इट प्रोवाइड ए नेचुरल लिंक बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स. ये ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के अंदर एक नेचुरल लिंक प्रोवाइड करता हमें. ओशियंस आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. मैंने आपको पहले बताया था कि जो ओशियंस है वो मेन कंपोनेंट्स है हाइड्रोस्फीयर्स का. वैसे तो हमें रिवर्स, लेक्स और सी से भी वाटर मिलता है, लेकिन जो ओशियंस है वो हमारा मेन कंपोनेंट्स है. इट इज ऑल्सो यूज एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय द पीपल. और एज ए ट्रांसपोर्ट मीन्स भी हम इसको यूज करते हैं. सो हाइड्रोस्फीयर इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ. स्टूडेंट, वी स्टडी अबाउट लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हमारे अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स होते हैं. फर्स्ट हमने पढ़ लिया लिथोस्फीयर, सेकंड हमारा एटमोस्फीयर और थर्ड है हमारा हाइड्रोस्फीयर. अब हमारा 4th जो डोमेन्स है जो लास्ट है वो हमारा क्या है? बायोस्फीयर. जो लास्ट हमारा मेजर डोमेन्स है बायोस्फीयर. इट मीन्स द लिविंग वर्ल्ड. बायोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है कि इट मीन्स द लिविंग वर्ल्ड. It contains all form of life such as plant, animals, human beings, etc. Biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. जो हमारा बायोस्फीयर है उसको हम एक नैरो जोन बोलते हैं. एक अर्थ की ऐसी नैरो जोन जहां पे वाटर, लैंड और एयर आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और जो हमारी लाइफ जो हमें प्रोवाइड होती है वो यहीं से प्रोवाइड होती है. It is a significant part of the earth. Significant means very important part of the earth.
इट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वो जगह है अर्थ की जहाँ पे मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें मिलते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेस देन 11 किलोमीटर below sea level to the troposphere. इट प्रोवाइड अस द फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ। ये हमारी जितनी भी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं लाइफ की वो हमें यहीं से प्रोवाइड होती है। बोथ बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं और जितने भी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होने के साथ वो क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं जो उनमें इंटर रिलेशंस होता है। प्लांट, एनिमल्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने चारों तरफ क्या फॉर्म करते हैं, एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। सो इकोसिस्टम इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एन इकोसिस्टम इज ए सिस्टम फाउंड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि इंटरेक्शंस होता है, आपस में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेशंस होते हैं उनका विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक दूसरे के ऊपर अपनी एनर्जी है उसको ट्रांसफर करते हैं, अपने जो मटेरियल्स हैं उनको मतलब ट्रांसफर करते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट रेफर टू ए कम्युनिटीज ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल, कि एक ऐसी प्लांट और एनिमल की कम्युनिटी जो एक पर्टिकुलर फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर रहती है और एक दूसरे से लिंक है, एज वेल एज लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। और सभी प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग अपने सराउंडिंग में क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते एक दूसरे के ऊपर और दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर आल्सो। दैट इज the relation among the living organisms as well as the relations between the organisms and their surrounding form as ecosystem। इकोसिस्टम को बेटर तरीके से हमें समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे जैसे केरला और राजस्थान का एग्जांपल लिया है। इसने कहा है कि केरला के अंदर हैवी डाउनपोर मतलब ज्यादा बारिश होना, हैज लेस ग्रीन, उस वजह से क्या वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीन फील्ड्स हैं, कोकोनट प्लांटेशंस हैं, एलिफेंट्स वगैरह और दूसरे भी एनिमल्स हमें वहाँ पे आसानी से देखने को मिलते हैं। अब दूसरी तरफ जो राजस्थान है, इट डज नॉट रेन मच, वहाँ पे जो रेन है वो बहुत कम होती है। किसके कंपैरिजन में, केरला के कंपैरिजन में। देयर इज कीकर एंड सैंड एवरीवेयर। जहाँ केरला के अंदर हमें मतलब लश ग्रीन फील्ड्स, कोकोनट प्लांटेशंस देखने को मिलते हैं, वही राजस्थान के अंदर हमें कीकर और जो सैंड है वो देखने को मिलता है। ऑल्सो इट हैज कैमल्स, स्नेक्स, लेजार्ड एक्सेट्रा, ये वहाँ के एनिमल्स हैं। इन दिस वे वी फाइंड दैट द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लाइव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्ले। इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वेजिटेशंस हैं, एनिमल्स हैं, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, वेरीज मतलब डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। दिस शो दैट दे आर रिलेशंस इन ईच अदर, और इससे हमें पता लगता है कि वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट, तो हमने आज इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा और हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा। ये हमारे सभी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम मैन मेड जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को वंस एंड ट्वाइस देखें और इसको अच्छे से मतलब समझने की कोशिश करें। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।